Hello friends, I am Harshit Bhorgade. Now I am explain you in detail what is the page replacement algorithm and how it is work in operating systems. Introduction to page replacement algorithm. In an operating system that uses paging for memory management, a page replacement algorithm is needed to decide which page needs to be replaced when new pages come in. That means the page replacement algorithm decides which page needs to be replaced when new page come in inside the memory. That means कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम ये डिसाइड करते हैं कि जब कोई नया पेज मेमोरी में आएगा तो कौन सा ओल्ड पेज उससे रिप्लेस होगा. So importance of page replacement algorithms necessary when page fault occurs and no free page frames in memory. In the previous slide, I explained you what is the basic idea behind the page replacement algorithm. In this slide, I explain you what is page replacement. A page replacement is an operating system is the process in which a page from the main memory is replaced with a page from a secondary memory. It's a basic idea behind the page replacement algorithms and page replacement from main memory to secondary memory. The types of page replacement algorithm. First in, first out. So first in, first out is the first type of page replacement algorithm. Bellidy's anomaly. It's not a page replacement algorithm type. It's a problem which is arise when we follow the first in, first out page replacement algorithm. Second is least recently used page replacement algorithm. Third is optimal page replacement algorithm. In this diagram, I will show you how the page replacement process in going on the inside the operating system and main memory to virtual memory. In this diagram, you can see how the process of the page replacement algorithms inside the main memory and in operating systems. Now we are discussing about first in first out page replacement algorithm. It is the simplest page replacement algorithm. In this algorithm, the operating system keeps track of all pages in the memory in a queue. The oldest page in the front of the queue. When a page needs to be replaced, page in the front of the queue is selected for removal. देख इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे पेजेस का ट्रैक रखता है मेमोरी में इन द फॉर्म ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो कॉन्सेप्ट फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का. दैट मीन्स कि जो सबसे पहले आया है वो सबसे पहले आउट होगा. इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम के लिए. हमारे पास अवेलेबल स्ट्रिंग्स है. सबसे पहले 5 हमने नंबर ऑफ 3 फ्रेम्स लिया है मेमोरी के लिए. तो सबसे पहले 5 तो 5 हमारे पास मेमोरी में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं था तो एक तरीके से पेज फॉल्ट हुआ. और फिर हम अगेन चलते हैं 0 पे तो 0 भी अवेलेबल नहीं है तो ये भी एक पेज फॉल्ट है. फिर चलते हैं 1 पे तो 1 भी अवेलेबल नहीं है तो ये भी एक पेज फॉल्ट है. तो अब देखते हैं 0 पे तो हमारे पास ऑलरेडी 0 अवेलेबल है तो ये पेज हिट हुआ. सो अब नेक्स्ट देखते हैं 2. 2 तो 2 को कैसे हम लोग किस पेज से रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमारे पास तो मेमोरी में 3 फ्रेम्स हैं और 3 फ्रेम्स ऑलरेडी फिल्स हैं. तो इसके लिए जो अब कॉन्सेप्ट काम आता है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम का. तो इसमें से जो हमारे पास सबसे पहले पेज इंसर्ट हुआ था जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास 5 इंसर्ट हुआ था तो अब 2 जो है वो हमारे 5 से रिप्लेस होगा. तो इस तरह से हमने 2 को 5 से रिप्लेस कर दिया. अब नेक्स्ट हम चलते हैं 3 में. तो 3 जो था हमारे पास अब 3 को किससे रिप्लेस करेंगे हमारे पास ऑलरेडी तो पेज फिल्स है मेमोरी में. तो हम देखते हैं कि हमारे पास अब जो अवेलेबल है उसमें से सबसे ओल्डेस्ट कौन है जो सबसे पहले आया था. तो हमारे पास 102 में से सबसे पहले है 0 जो सबसे पहले आया था तो 0 को रिप्लेस कर दिया हमने 3 से. तो अब हमारे पास अवेलेबल हो गए 1 3 और 2. अब देखते हैं अगेन 0 तो फिर 0 आ गया. तो हमारे पास सबसे ओल्डेस्ट कौन सा हो गया तो सबसे ओल्डेस्ट 1 3 और 2 में से 1 है तो 1 फिर रिप्लेस हो गया 0 से. तो ये अगेन ऑफ टाइप ऑफ पेज फॉल्ट हो गया. जितने बार हम लोग पेज को रिप्लेस करते जा रहे हैं जब तक हमारे पास पेज हिट नहीं हो रहा तो ये सारे पेज फॉल्ट होते हैं. तो हम लोग चलते हैं किस पे 2 पे. तो अब
तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इट्स अ पेज हिट। फिर हम लोग चलते हैं 4 पे, तो 0, 3 और 2 ये हमारे पास पहले से अवेलेबल थे, 4 अवेलेबल नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कि 0, 3 और 2 में से सबसे ओल्डेस्ट वाला कौन सा है, जो सबसे पहले आया हुआ था। तो जो 2 था वो सबसे पहले आया है, 2 से रिप्लेस हो गया 4। सिमिलरली हम सभी जितने भी हमारे पास रिमेनिंग पेजेस हैं, उन सभी के लिए इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम लोग ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट है। सो हमारे पास टोटल जो पेज फॉल्ट निकल के आते हैं वो 11 है, और नंबर ऑफ पेज हिट है वो 10 है। तो रेट ऑफ पेज फॉल्ट यानी कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट पर फ्रेम्स जो हमारे पास निकल के आता है वो 3.6 है। सो ये था हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो ये है बेलेडीज एनोमली। इट्स नॉट अ टाइप ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, इट्स अ प्रॉब्लम which is arise when we follow the first in first out page replacement algorithm to replace a page. So what is the problem? So Beloit's anomaly proved that it is possible to have more page fault when increase the number of page frames in first out page replacement algorithm. तो ये इसको समझने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि बिलॉइड्स एनोमली क्या कहता है। ये कहते हैं कि हमने जो पहले केस वन, अगर हम फ्रेम फ्रेम 3 लेते हैं, 3 मेमोरी फ्रेम्स लेके फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम फॉलो करते हैं, तो हमारे पास पेज फॉल्ट जो है वो 9 आते हैं। और इन केस अगर हम लोग नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ा दें, मतलब 3 से 4 कर दें, तो हमारे जो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे। ये बिलॉइड्स एनोमली कहते हैं। So it's a problem when we are increasing the page frames, memory frames, sorry. So the count of page fault is increased. In the next slide, we will see that uh, we increase the page from page frame 3 to 4, and the page fault increase 9 to 10. It's a Blady's anomaly problem which is arise in first out page replacement algorithm. So the advantage क्या इस first in first out का क्या advantage है? It is simple and easy to understand and implement. मतलब ये easy to समझने के लिए भी आसान है, implement भी इसे आसानी से कर सकते हैं. So disadvantage क्या है? The process effectiveness is low. मतलब कि इतना effective नहीं है ये. और सेकंड डिसएडवांटेज जो हमने पढ़ा बिलेडीज एनोमली कि व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेम व्हाइल यूजिंग FIFO वी आर गिविंग मोर मेमोरी टू प्रोसेस, दैट मींस बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इज इंक्रीज्ड, इट्स अ प्रॉब्लम। सेकेंड जो हमारे पास पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है वो है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। इन दिस एल्गोरिदम द पेज फॉल्ट हैज बीन the page that has been not used for longest period of time is selected for replacement. The concept behind the least recently used page replacement algorithm, that means कि हमारे पास जो भी अवेलेबल पेज हैं फ्रेम मेमोरी में, मेमोरी फ्रेम्स में सॉरी, सो इसमें से जो पेज लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम से मतलब यूज नहीं हुआ है, उसको जब भी कोई नया पेज आएगा तो उससे हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे। सो इसको समझने के लिए हम लोग सिमिलर एग्जांपल लेते हैं जो हम लोगों ने पहले लिया था कि हमारे पास रेफरेंस स्ट्रिंग में ये अगेन 5 5 को जब हमने इंसर्ट कराया, हम लोग 3 मेमोरी फ्रेम्स ले रहे हैं। So 5 is not already available in memory frames. It's a type of page fault. It's again page fault when we inserting a 0 and we inserting 1. So it's again a page fault. uh, फिर हम लोग देखते हैं 0 को इंसर्ट करते हैं, तो 0 इज ऑलरेडी अवेलेबल, तो ये पेज हिट हो गया, ये पेज फॉल्ट नहीं होगा। तो अब यहाँ पे फिर आया 2, तो अब 2 में 1, 0 और 5, अब इसमें से कौन सा रिप्लेस होगा जो मतलब लॉन्गेस्ट टाइम ऑफ पीरियड से यूज नहीं हुआ है। तो 5 कहीं भी यूज नहीं हुआ है, तो ये 2 से रिप्लेस हो जाएगा। और 3 नेक्स्ट है हमारा 3, तो अब 3 किससे रिप्लेस होगा? 3 को अगर हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करते तो ये होना चाहिए था 0 से रिप्लेस, ये तो होना चाहिए था 0 से रिप्लेस।
अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को यूज़ करते हैं, बस हम लोग यूज़ कर रहे हैं लीस्ट रिसेंटली यूज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। और इससे पहले हम लोग अगर देखते हैं तो ज़ीरो पहले यूज़ हो चुका है जस्ट पहले, तो वो लीस्ट रिसेंटली यूज़ जो रहता है वो नहीं रहा। तो हमारा क्या हो गया लीस्ट रिसेंटली यूज़ अब 1। तो 1 जो है 1 अब रिप्लेस हो जाएगा 3 से। और similarly in this process we will solve all this remaining string। तो हमारे पास टोटल पेज फॉल्ट निकल के आते हैं वो 12 आते हैं, और नंबर ऑफ पेज हिट आते हैं वो 9 आते हैं। तो रेट ऑफ पेज फॉल्ट जो रहता है हमारे पास वो मतलब पर फ्रेम्स वो 4 रहता है। लीस्ट रिसेंटली यूज सिमिलर एग्जांपल जो हम लोगों ने फीफो से सॉल्व किया था। अब हम लोग देखते हैं इसके एडवांटेज क्या है लीस्ट रिसेंटली यूज पेज एल्गोरिदम के। इट इज ओपन फॉर फुल एनालिसिस, मतलब ये फुल एनालिसिस करने के लिए फुल ओपन रहता है। और सेकेंडली ये चीज़ है कि बिकॉज ऑफ ये फॉलो करता है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, और जो फीफो है वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करता है। तो इन दिस वी विल द रिप्लेस द पेज विच इज लीस्ट रिसेंटली यूज, दस फ्री फ्रॉम बेलेडीज एनम्ब्लॉय प्रॉब्लम। मतलब ये प्रॉब्लम इसमें अराइज नहीं होती और इसको रिमूव कर देता है। और इजी टू चूज पेज विच हैज फॉल्टेड एंड हैज नॉट बीन यूज फॉर लॉन्ग टाइम, ये एडवांटेज है इसके। और डिसएडवांटेज क्या है, इट रिक्वायर्स एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर टू बी इम्प्लीमेंटेड लाइक स्टैक हार्डवेयर असिस्टेंट इज हाई बिकॉज दैट इज इम्प्लीमेंटेड। सो फीफो से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। और तीसरा हमारे पास है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। दिस एल्गोरिदम स्टेट दैट द रिप्लेस दैट पेज which will not be used for longest period of time, future knowledge of reference string is required। मतलब ये एल्गोरिदम क्या कहता है, ये एल्गोरिदम कहता है कि जब भी कोई नया पेज आएगा मेमोरी फ्रेम्स में, तो उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे उस पेज से जो फ्यूचर में लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम तक के यूज नहीं होने वाला है। ये एल्गोरिथम ये कहता है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं फॉर सिमिलर स्ट्रिंग जो हम लोगों ने एलआरयू और फीफो के लिए सॉल्व किया था, और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। सबसे पहले तो 5 को हम लोग इंसर्ट करते हैं मेमोरी फ्रेम्स में। यहाँ पे भी हम लोगों ने 3 मेमोरी पेज फ्रेम लिया है। तो सबसे पहले 5 इंसर्ट किया, तो ये पेज फॉल्ट हो गया क्योंकि ये ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। तो फिर हम लोगों ने ज़ीरो इंसर्ट किया, ये भी पेज फॉल्ट है। फिर हमने 1 इंसर्ट किया, ये भी पेज फॉल्ट है। फिर आया ज़ीरो, तो ज़ीरो अवेलेबल है तो ये पेज हिट हो गया। अभी तक ये ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है इस प्रोसेस तक। और फिर हम लोग देखते हैं 2। तो 2 आया, तो अब 2 को हम लोग किस तरह से रिप्लेस करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल एल्गोरिदम अवेलेबल पेज है उसमें से। सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारे पास अवेलेबल क्या है प्रीवियसली 1 0 और 5। तो अब स्ट्रिंग में देखिए कि अभी 2 के बाद हमारे पास जो है फ्यूचर में वो कौन सा अवेलेबल, मतलब किसका ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो 2 के बाद 0 का यूज़ होने वाला है, 3 का यूज़ होने वाला है, फिर कहीं जाके 1 का यूज़ होने वाला है, बट 5 का कहीं भी फ्यूचर में यूज़ नहीं है। तो हम ये देखते हुए 5 को 2 से रिप्लेस कर देते हैं। सिमिलरली जब हम 3 हमारे पास आता है 3 में, तो अब 3 को किससे रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास अवेलेबल क्या है 1 0 और 2। तो हमारे पास 1 0 और 2 अवेलेबल है। अब 3 के बाद देखते हैं कि इनमें से कौन फ्यूचर में जल्दी यूज़ होने वाला है। फ्यूचर में 3 के बाद जो है 0 और 2 हमारे जल्दी ही यूज़ होने वाले हैं। तो हमारा पेज जो रिप्लेस होने वाला है वो 1 से रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह हम रिमेनिंग पार्ट के लिए भी इस एल्गोरिदम को फॉलो कर सकते हैं। सो ये एल्गोरिदम रियल लाइफ में अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। इट्स इमेजिनरी थिंग बिकॉज ऑफ दैट कि हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा पेज फ्यूचर में कहाँ यूज़ होगा नहीं होगा। सो इट्स एक तरीके से कह सकते हैं कि इसको रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन इसका पॉसिबल नहीं है। सो अब देखते हैं इससे नंबर ऑफ पेज कितने आए थे, 12 आए थे। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इसके 9 आए थे। तो रेट ऑफ पेज फॉल्ट 3 था, मतलब रेट ऑफ पेज फॉल्ट इसमें सबसे कम था और नंबर ऑफ पेज फॉल्ट भी कम था। इसलिए तो इसे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कहते हैं। सो एडवांटेज इज कॉम्प्लेक्सिटी इज लैंड लेस एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। तो इसको मतलब
इम्प्लीमेंट तो इजीली कर सकते हैं, बट हमें फ्यूचर का रेफरेंस पता रहना चाहिए कि कौन सा पेज फ्यूचर में यूज़ होने वाला नहीं। असिस्टेंट नीडेड इज लो, डेटा स्ट्रक्चर आर यूज्ड आर इजी एंड लाइट। डिसएडवांटेज क्या है कि ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज परफेक्ट बट नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिस, जो मैंने अभी बताया। एज द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट नो फ्यूचर रिक्वेस्ट, मतलब ओएस हमें ये नहीं जानता कि फ्यूचर में कौन सा पेज रिक्वेस्ट आएगा कौन सा नहीं आएगा। सो इसमें एरर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एरर हैंडलिंग इज टफ ऑलरेडी। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कंपेयर करेंगे कि फीफो, एलआरयू एंड ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में क्या कंपैरिजन है। एक सिमिलर हम लोग कॉमन एग्जांपल तीनों के लिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो पेज रेफरेंस का स्ट्रिंग है उसके लिए हम लोग तीनों के लिए एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फीफो में। अगेन मैं फीफो एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो हमारा फीफो का पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है वो इसमें फॉलो होता है। तो सबसे पहले हम फीफो की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आया 1, ये पेज फॉल्ट हो गया। फिर आया 2, ये भी पेज फॉल्ट हो गया। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हमने नंबर ऑफ मेमोरी फ्रेम्स 4 लिए हैं। फिर आया 3, ये भी पेज फॉल्ट हो गया। फिर आया 4, ये भी पेज फॉल्ट हो गया क्योंकि ये सब पहले से अवेलेबल नहीं थे फ्रेम्स में। फिर आता है 2, तो 2 तो ऑलरेडी अवेलेबल है तो ये पेज हिट हो गया। फिर आता है 1, ये भी अवेलेबल है तो पेज हिट हो गया। फिर आया 5, तो ये 5 किससे रिप्लेस होगा, जो फर्स्ट इन हुआ था, जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें से फर्स्ट इन कौन सा हुआ था 1, तो 1 से रिप्लेस हो गया 5। ठीक है। और फिर आया 6, तो अब हमारे पास अवेलेबल क्या थे 4, 3 और 2, 5। इसमें से जो हमारा क्यू था उस हिसाब से सेकेंड नंबर पे कौन आया था 1 के बाद 2 आया था, तो 2 से रिप्लेस हो गया 6। इसी तरह से हम लोगों ने बाकी रिमेनिंग पार्ट्स के लिए भी इसको सॉल्व कर लिया। तो टोटल पेज फॉल्ट हमारे पास कितने आ गए 14। तो अब नेक्स्ट जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो एलआरयू के लिए सॉल्व करेंगे। तो एलआरयू क्या बोलता है कि पेज जो हमारा नया पेज आएगा वो किस पेज से रिप्लेस्ड होगा, जो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम्स यूज नहीं हुआ है। ठीक है। तो पहले तो सिमिलरली 3-4 स्टेप जो हमारे पास नंबर ऑफ पेज के स्टेप्स के कॉमन रहते हैं दोनों तीनों एल्गोरिथम्स में। तो फर्स्ट पहले जब हम लोगों ने 1 इंसर्ट किया तो भी पेज फॉल्ट हुआ, फिर 2 इंसर्ट किया तो पेज फॉल्ट हुआ, फिर 3 इंसर्ट किया तो भी पेज फॉल्ट हुआ, फिर 4 इंसर्ट किया तो भी पेज फॉल्ट हुआ, फिर अगेन 2 इंसर्ट किया तो पेज हिट हुआ, फिर 1 इंसर्ट किया तो पेज हिट हुआ। अब 5, तो 5 जब हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं तो अब हमारे पास पेज मेमोरी फ्रेम तो फुल है, तो पेज कौन सा रिप्लेस होगा अवेलेबल पेज में से, वो लीस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग दिखते हैं कि मतलब कि जो अवेलेबल पेज है उसमें से कौन जो है लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम से यूज नहीं हुआ है। 4, 3, 2, 1, तो 4, 3, 2, 1 में से हमारे पास जो क्या कहते हैं 3 है वो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम से यूज नहीं हुआ है, क्योंकि 4 और 1 तो ऑलरेडी हिट हो चुके हैं ना, ये तो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जो हमारे पास 3 है वो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम से यूज नहीं हुआ है, तो हमारे पास 5 3 से रिप्लेस हो जाएगा। फिर आता है 6, तो 6 में क्या होगा, तो अब देखते हैं हमारे पास अवेलेबल 4, 5, 2, 1, तो इसमें से 5 तो अवेलेबल अभी यूज़ हो चुका है, फिर 2 भी यूज़ हो चुका है, फिर 1 तो अभी यूज़ हुआ था उसके पहले, तो फिर हमारे पास जो बचता है 4, तो 4 जो है हमारा वो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम से यूज़ नहीं हुआ है, तो इससे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं 6 को। तो सिमिलरली हम बाकी रिमेनिंग स्ट्रिंग्स के लिए भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास टोटल पेज फॉल्ट आ जाते हैं 10। ठीक है। तो अगेन अब नेक्स्ट हमारा हम सिमिलर एग्जांपल को ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट से सॉल्व करते हैं। सो देखते हैं फिर कि ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट क्या कहता है कि हम नया पेज जो भी आएगा उसको उससे रिप्लेस करें जो फ्यूचर में लॉन्गेस्ट टाइम तक के यूज नहीं होने वाला है अवेलेबल पेज। सो द फर्स्ट हम लोग इंसर्ट करते हैं 1, तो फिर एक पेज फॉल्ट हो गया, फिर हम लोगों ने 2 इंसर्ट किया, ये भी पेज फॉल्ट हो गया, फिर हम लोगों ने 3 इंसर्ट किया तो ये भी पेज फॉल्ट हुआ, फिर हमने 4 इंसर्ट किया तो ये भी पेज फॉल्ट हुआ क्योंकि ये पहले से अवेलेबल नहीं थे। फिर आता है 2, तो अब 2 को ये अवेलेबल है तो ये पेज हिट हो जाएगा। फिर आता है 1, तो ये भी अवेलेबल है तो ये भी पेज हिट हो जाएगा। अब फिर आता है 5, तो अब 5 को किससे रिप्लेस करेंगे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास देखते हैं कि 4, 3 और 2, 1, इसमें से
लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में कौन सा यूज नहीं होने वाला है फ्यूचर में, नॉट फॉर द पास्ट, हम फ्यूचर में देखेंगे। तो 4 3 2 1, तो इसमें से जो हमारे पास लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में यूज़ नहीं होने वाला है वो है 4। तो हम लोग 4 से रिप्लेस कर देते हैं 5 को, फ्यूचर में देखते हुए कि फ्यूचर में 4 का जो 3 2 1 है उसके बाद ही कहीं यूज़ होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। तो हम इसको 5 से रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि इसका फ्यूचर में कोई यूज़ नहीं है 4 का। अब नेक्स्ट आता है 6। तो अब 6 को किससे रिप्लेस करें? तो हमारे पास अवेलेबल क्या है? 5 3 2 1। तो अब देखते हैं कि नियर बाय फ्यूचर में किसका किन किन का जल्दी यूज़ होने वाला है और किसका यूज़ नहीं होने वाला है लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में। 1 का भी यूज़ होगा फ्यूचर में, 2 का भी यूज़ होगा, 3 का भी यूज़ होगा, 5 का लॉन्गेस्ट फ्यूचर ऑफ टाइम में यूज़ नहीं होने वाला है, पीरियड ऑफ टाइम में सॉरी, यूज़ नहीं होने वाला है फ्यूचर में। तो हम लोग रिप्लेस कर देते हैं इसको 6 से। सिमिलरली हम लोग ये एल्गोरिदम फॉलो कर लेते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्ट्रिंग के लिए। तो हमारे पास जो पेज फॉल्ट निकल के आते हैं वो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स हैं 8। सो अब हम लोग कंपैरिजन में देखते हैं कि जब पेज हमने फीफो अप्लाई किया तो पेज फॉल्ट 11 आया, जब एलआरयू अप्लाई किया तो पेज फॉल्ट 10 आया, और जब ऑप्टिमल किया तो पेज फॉल्ट 8 आया। सो जो हमारे पास मोस्ट इफिशिएंट होता है एल्गोरिदम, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, वो होता है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। बट इसको कहना चाहिए हम लोग रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ओएस को फ्यूचर रिक्वेस्ट तो नहीं बताना कि कौन सा पेज कब आएगा। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन मस्त है, लीस्ट रिसेंटली यूज, बिकॉज ऑफ दैट इसमें ना लेडीज जनरल प्रॉब्लम राइज होती है। सो आज की वीडियो में हमने देखा कि समरी ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ पेज रिप्लेसमेंट, फिर हमने सीखा कि एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स। सो थैंक यू फॉर watching this video.